السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده وسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. محترم سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم سوال کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کچھ چند سوالات لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور وہ سوالات ہیں کہ آج چونکہ ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے سوسائٹی، اپنے ماحول کے اندر کہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے گھروں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، گھروں کو سجایا جا رہا ہے، گھروں کی کھدائی کی جا رہی ہے، قبرستان کو سجایا جا رہا ہے، اس لیے 15ویں شعبان کے عبادت کے لیے۔ تو جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ 15ویں شعبان احادیث مبارکہ کے اندر اس کی فضیلت تو آئی ہے، لیکن جو فضیلت ہم نے اور آپ نے بنا رکھا ہے، کیا یہ فضیلت 15ویں شعبان کو، کیا یہ فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ چند اہم سوالات میں آپ لوگوں کے سامنے جس کو لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ سوالات کیا ہیں کہ ہمیں اور آپ کو پہلے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم اگر 15ویں شعبان کو اگر عبادت کا دن اور عبادت کی رات کو ہم منا رہے عبادت سمجھ کر، تو کیا یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے قرآن مجید میں اس کی دلیل پیش کی؟ پہلا سوال، اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی دلیل پیش کی تو وہ کون سی ایسی آیت ہے؟ پیش کرے۔ اس کا جواب کھلم کھلا نہیں، ایسی کوئی بھی دلیل قرآن مقدس سے ہمیں نہیں ملتی کہ ہمیں 15ویں شعبان کو خاص عبادت کا دن قرار دیا جائے، کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ملتی۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پیش کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے کیا کہا؟ اللہ نے آپ پڑھیے قرآن مقدس کو، اللہ نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں کہ تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی، نبی علیہ السلام کی حیات، یہ تمہارے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے نبی علیہ السلام کی زندگی۔ کیا نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں، کیا آپ نے اپنی حیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ شعبان کا مہینہ کتنی بار آیا؟ کیا نبی علیہ السلام نے اس کو عبادت کی رات گزار دیا؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہ اپنے صحابہ سے، اپنے اصحاب سے کہا کہ لوگوں آج 15ویں شعبان کی رات ہے، آج 15 شعبان کی رات ہے، آج یہ عبادت کرو؟ اللہ اکبر۔ کیا آپ نے حکم دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، آپ نے حکم نہیں دیا۔ تیسرا جو سوال اہم ہے کہ وہ صحابہ اکرام کی عظیم جماعت شعبان کا مہینہ، یہ 15ویں شعبان کی عبادت، اس کو آپ نے انجام دیا؟ کیا صحابہ اکرام نے اس 15ویں شعبان کو عبادت کی رات سمجھا؟ آپ ذرا تصور کیجئے، جب صحابہ اکرام، نبی علیہ السلام اور جتنے ائمہ اکرام گزرے، کیا انہوں نے اس رات کو عبادت کا گزار سمجھا جو ہم آج سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنے ہی آپ سے پوچھیں کہ جس کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، نبی علیہ السلام کے اوپر، صحابہ اکرام کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا ہے، وہ عربی ادب کے سمجھنے والے، وہ اس آیت سے، یہ قرآن کی آیت، یہ دلیل سے، یہ احادیث مبارکہ سے وہ دلیل نہیں نکال سکے جو ہم اور آپ نکال رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ صاف منع کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اب دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے کہا لوگوں آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا۔ جس دین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مکمل کر دیا ہو، اللہ نے کامل کر دیا ہو، اور اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تو آپ یہ بتائیں کیا صحابہ کرام نے اس کا حکم دیا؟ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا؟
नई हुक्म दिया और अल्लाह ने जब दीन को मुकम्मल कर दिया तो फिर हम ये शबान की रात को क्यों इबादत की रात समझ रहे हैं? आप देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, के ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। वला तुबतिलू अमालकुम, और अपने अमाल को बर्बाद मत करो। मजीद अल्लाह ने क्या फरमाया, आप पढ़िए कुरान मुक़द्दस को। अल्लाह ने क्या कहा, व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल। आज ये दलील पेश की जाती है, ये कहा जाता है कि हम अगर जाग लिए, हम इबादत कर लिए, हम नमाज पढ़ लिए हैं, तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया? मेरे भाई, यही तो बात, यही तो चीज दीन के अंदर बिदअत कहलाती है। आपने क्या फरमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि हर बिदअत गुमराही है, हर बिदअत गुमराही है और ये गुमराही तुम्हें जहन्नम में ढकेल देगी। हम आज ये समझिए, अपने फहम से, अपने इल्म से ये समझ लें कि हम नमाज पढ़ लें। आप इसकी मिसाल ये समझिए कि आपके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 5 वक्त की नमाज को मुकर्रर कर दिया। आप नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। अब इसी को इबादत को आप 6 वक्त की करार दें, या फिर आप फजर की 2 रकात को आप 3 रकात पढ़ लें, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो क्या ये इबादत आपके लिए कबूल होगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपके लिए 2 रकात नमाज फर्ज की गई है फजर की। यही इसी तरह यही है कि जो चीज दीन के अंदर साबित ना हो, आप उसको दीन समझकर, आप उसको दीन समझकर आप पेश करें, आप उसको दीन समझकर आप मनाएं, तो ये साबित नहीं है। आप देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 3 शख्स आते हैं, आकर आपकी सबसे चहती बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? अल्लाह, सबक सबक। ये इस अहम वाक़े की तरफ मैं आपको लेकर इसलिए चल रहा हूँ, इसमें पॉइंट की बात है कि 3 शख्स आए और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल करने लगे, दरियाफ्त करने लगे, पूछने लगे कि आप ये बतलाएं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत कैसे होती थी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और जब उनको पता चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत इस कदर होती थी, तो उन्होंने क्या कहा, अल्लाह अकबर, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मासूम अनिल खता हैं, आपके अगले और पिछले तमाम गुनाह माफ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम गुनाह माफ हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके बावजूद आप इतनी लंबी लंबी इबादत करते थे। अल्लाह अकबर। एक शख्स ने कहा कि मैं पूरी रात जाकर अल्लाह की इबादत करूंगा। दूसरे ने क्या कहा? दूसरे ने कहा कि मैं पूरे महीना रोजा रखूंगा। और तीसरे ने क्या कहा? तीसरे ने कहा कि मैं औरतों से दूर रहूंगा, मैं औरतों से दूर रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और आपके नबी, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, आपको जब पता चला तो आपने उन तमाम को बुलाया और उसके बाद आपने पूछा, क्या आपने ऐसा ऐसा कहा? तो उन्होंने कहा कि जी, हम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह की कसम, मैं तुम सब से अल्लाह से ज्यादा डरने वाला हूं, तुम सब से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। इसके बावजूद मैंने शादी भी की, इसके बावजूद मैंने शादी भी की, मैं रोजा भी रखता हूं, अल्लाह अकबर, मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पढ़ी, क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से इनकार किया वो हम में से नहीं। मुहतरम सामीन करम, ये वाकया हमें इस बात का सबब, हमें इस बात की हमें याद दहानी करती है कि हम दीन के अंदर कोई ऐसी बात इबादत के तरह हम इसको लाकर फिट कर दें और हम कहें कि हम इबादत कर रहे हैं, हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, हम नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हम तहज्जुद पढ़ रहे हैं, हम अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, ये गलत थोड़ी है। मुहतरम सामीन इकराम, ऐसी कोई भी बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं फरमाई, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, तो हमारा और आपका भी यही फेल होना चाहिए कि हम भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इत्तिबा करते हुए हम इस बात पर अमल करें। हाँ, जिस बात की दलील मिलती है वो दलील क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखा। और आपसे जब सवाल किया गया, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कदर रोजा रखते थे, इस कदर गोया कि ऐसा मालूम होता था कि अल्लाह के नबी अब पूरे महीने का रोजा रख लेंगे। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर आप छोड़ देते थे,
फिर उसके बाद रोज़ा रखते थे। जब छोड़ देते थे तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ऐसा लगता था कि गोया कि अब अल्लाह के नबी रोज़ा रखेंगे ही नहीं, फिर रोज़ा रखते, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दर पे रोज़ा रखते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को 15 शबान के बाद रोज़ा रखने से मना किया गया, मना कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पे दर पे रोज़ा रखे, तो आप पे दर पे रोज़ा रखिए। आप 1 शाबान से लेकर 15 शाबान तक रोज़ा रखें, आपको मना नहीं किया जा रहा है। आप रोज़ा रखें, आप अल्लाह की इबादत करें, लेकिन कोई ख़ास दिन मुकर्रर कर देना, कोई ख़ास दिन इबादत कर देना कि 15 शाबान के दिन रोज़ा रखना, 15 शाबान की रातों जागना, अल्लाह की इबादत करना, ये कहीं से साबित नहीं मिलता है। किसी ख़ास दिन इबादत कर उसको मुकर्रर कर देना, ये गलत बात है। आप रोज़ा रखें, आपको कौन रोक रहा है? आप अल्लाह की इबादत करें। बाज़ लोग कहते हैं कि इस रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले आसमान पे आता है और अल्लाह ये निदा लगाता है, ये आवाज़ लगाता है कि मेरे बंदो, ए मेरे बंदियों, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। कौन है मुझसे मांगने वाला? अल्लाह के बंदे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हर रात अल्लाह ताला पहले आसमान पे आता है। आप मांगिए ना अल्लाह से, आपको कौन रोक रहा है? आप अल्लाह से फरियाद मांगिए, आप अल्लाह से करिए, आप अल्लाह से मांगिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता करेगा। आप मांगिए तो, लेकिन कोई खास दिन मुकर्रर कर देना, कोई खास दिन इबादत की रात करार देना, ये बात गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है और तुम्हें जहन्नम में ढकेल देगी। ये मैं किसी की बात को तंज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये मेरी मिसाल उस आदमी की तरह है, मेरी मिसाल उस आदमी की तरह है जैसे एक आदमी आग जलाए ठंडी से बचने के लिए, एक आदमी आग जलाए, फिर उसी पे पतंगे कीड़े मकोड़े उस आग में आकर बार बार उस आग में गिर रहे हों और बेचारा वो आदमी अपने हाथों से उनको हटा रहा है, अपने हाथों से उनको बचा रहा है। मेरी मिसाल ऐसे ही है, मेरी मिसाल ऐसे ही है। मैं किसी को तंग नहीं कर रहा हूँ। मुहतरम सामीन इकराम, आप देखें, अभी मैं सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब ये कह रहे थे, ये बतला रहे थे, ये दलील पेश कर रहे थे, अल्लाह अकबर, कि आप लोग जो कहते हैं ना कि 15 शाबान की दिन हलवा बनाना, 15 शाबान के दिन हलवा बनाकर खाना, ये कहाँ से साबित है? तो वो मौलवी साहब बता रहे थे कि आप लोग जो ईद और बकरीद में जो सेवई बनाते हैं, ये इसकी दलील कहाँ से मिलती है? अल्लाह, इसकी दलील कहाँ से मिलती है? अरे भाई, हम इसको कहाँ खास कर दे रहे हैं? हमने कहाँ कहा कि इसको खास ही कर देना है? हम तो खास नहीं कर रहे हैं ना कि किसी के यहाँ तरह तरह के पकवान बनते हैं। हाँ, हमने इसको कोई खास नहीं बना दिया कि सेवई बनाओ। तो इसकी दलील, ये कोई माकूल दलील नहीं है आपकी। आप ये जो दलील पेश कर रहे हैं, ये जो दलील जवाब में दे रहे हैं, तो आप जरा सोचें, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला की वो अजीम जमात, उनके दरमियान ये रात गुजरी, ये महीना गुजरा, क्या उन्होंने इसका हुक्म दिया? क्या उन्होंने ये रात की इबादत का रात समझा? क्या उन्होंने इस रात इबादत किया? आप जरा तसव्वुर कीजिए, आप सवाल अपने आप से खुद सवाल कीजिए, आप पढ़िए तो सही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, इक़रा, तू पढ़ अपने रब की। जब आप पढ़ेंगे तभी आप जानेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू अमालकुम, कि ईमान वालों, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, अपने अमाल को बर्बाद मत करो। आप देखें, आज हम सब ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, मुहिब्बे रसूल हैं, हम मुहिब्बे रसूल हैं। हम सब का ये दावा है। मुहतरम सामीन, जरा दिल पे हाथ रखकर कहिए कि आप अगर मुहिब्बे रसूल हैं, तो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म नहीं दिया, तो आप कहाँ से दलील निकाल रहे हैं? या सहाबा ने नहीं किया, तो आप कहाँ से दलील निकाल रहे हैं? सहाबा ने नहीं किया, अल्लाह ने कुरान मजीद में इसकी कोई फजीलत नहीं दी, तो आप कहाँ से इसकी रात मना रहे हैं? और इसके बाद आप देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हौज़े कौसर अता किया। आप पढ़िए कुरान मुक़द्दस को, अल्लाह ने कहा, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, यानी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता किया, आपको हमने कौसर अता किया है। और उसके बाद जब क़यामत के दिन लोग परेशान होंगे, प्यास से बेचैन होंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को हौज़े कौसर पिलाएंगे। वो वाक़ई अपने ज़हन पे रखकर आप देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब आपकी उम्मत आएगी ना, तो वो लोग भी आएंगे जो आपके दीन के अंदर नई नई बात को ईजाद कर दिए हैं। फरिश्ते उनके दरमियान हायल हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि फरिश्तों आने दो, ये तो मेरी उम्मत है। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नहीं मालूम, आपको इल्म नहीं है कि आपके आने के बाद या आपकी उम्मत या इन लोगों ने ऐसी नई नई बात ईजाद कर दी थी जिसका आपने हुक्म नहीं दिया था, ऐसी बात इन्होंने ईजाद कर दी थी।
अल्लाह अकबर। आज देखें, आज अपने माहौल के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर आज हम एक सरसरी निगाह दौड़ाते हैं। आज 15वीं शाबान की रात, आज बहुत सारे मोहल्ले इलाकों में बहुत से घरों को सजाया जाता है। उसके बाद नए नए कपड़े पहने जाते हैं, हलवे बनाए जाते हैं, और उस दिन उसके बाद पूरी रात इबादत की रात इबादत किया जाता है, इबादत की रात करार दिया जाता है, और बहुत बड़ी बड़ी नमाजें बहुत बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ते हैं। उसके बाद रोज़ा रखते हैं। तो ये किसी दिन खास कर देना, रोज़ा रख लेना, इबादत कर लेना, ये कहाँ से साबित है? क्या सहाबा ने किया? अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया? नहीं दिया तो हम कौन होते हैं मनाने वाले? दीन के अंदर कोई गुलू करना, कोई ऐसी बात ईजाद कर देना जिसका हुक्म नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं दिया, उसको आप करें तो वो अमल मरदूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने मेरी सुन्नत के अंदर, मेरी दीन के अंदर कोई ऐसी बात ईजाद की जिसका हुक्म मैंने नहीं दिया, तो वो अमल मरदूद है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें बिदअत और खुराफात से बचा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।